ملتان کے اہم شاہراہ انتظامیہ کی توجہ کی منتظر مین سعیدہ والا بائی پاس چوک پر سلپ وے تعمیر نہ کیا جا سکا۔ انتظامیہ نے سال قبل روڈ کی مرمت کے لیے سلپ وے سکریچ کیا تھا۔ شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان کی اہم شاہراہ انتظامیہ کی توجہ کی منتظر ہے۔ مین سعیدہ والا بائی پاس چوک پر سلپ وے تعمیر نہ کیا جا سکا۔ مزید جانتے ہیں سلمان ضمیر سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ملتان شہر کی عام شاہراہوں پر جہاں پر کام کیا جا رہا ہے وہیں پر ہی ایک ایسی بھی شاہراہ ہے جو کہ اس وقت ملتان کی سب سے زیادہ مصروف ترین شاہراہ جو ہے وہ بن چکی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں سعیدہ والا بائی پاس چوک پر۔ یہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چند ماہ قبل جو ہے اس روڈ کو جو ہے وہ ملتان ایونیو کا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ کیا گیا ہے، اور جو کہ ملتان کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، جس سے ملتان کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے ایک وسیع پیمانے پر خوبصورتی میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی کے اندر ایک بدنما داغ جو ہے وہ یہ چھوٹا سا سلپ وے جو ہے درمیان میں یہ آ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے شہری جو ہیں انہیں بے حد دشواری کا سامنا ہے۔ بات کریں گے سکریچ روڈ کی تو وہ اس پورے روڈ کو سکریچ کیا گیا تھا اور اس پر نیا لک کے ساتھ نیا کارپیٹڈ روڈ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا سلپ وے جو ہے یہ چھوڑ دیا گیا ہے، جس پر اب یہ دیکھ رہے ہیں میرے رقم میں یہ تو گاڑیوں کا ایک کثیر تعداد گاڑیوں جو ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے گاڑیوں کو گزرنا ہوتا ہے، اور یہ جو سکریچ ہوا روڈ ہے یہ نظر نہیں آتا، اور اچانک کی جو ہے اس روڈ پر جب گاڑی آتی ہے تو گاڑی جو ہے وہ سلپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس روڈ کے اوپر تمام کے تمام برانڈز اور کھانوں کے جو ہوٹلز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ بالکل عقب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک کالج بھی ہے بچوں کا، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں بچے جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں۔ علاقہ مکین اور شہری جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے کہ یہ جو روڈ ہے یہ ایک سال پہلے جو سکریچ کیا گیا تھا، مگر اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس روڈ کو چھوڑ دیا گیا، باقی تمام روڈ جو ہیں اسے کارپیٹڈ کر دیا گیا ہے۔ ہاں جی یہ روڈ بالکل چھوڑ دیا انہوں نے، اور یہاں سے کئی بچے گر کے ان کے سر پھٹ گئے ہیں۔ یہ وارڈن والے خود ان کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارا رکشہ ہے، میرا رکشہ یہ کھڑا ہے، وہ ٹائر پھٹ گیا میرا ادھر۔ یہ مہربانی کرائیں یہ روڈ بنوائیں، یہ بنوایا جائے۔ ایک اور ڈرائیور موجود ہے۔ سر کیا کہیں گے کہ گاڑی جب اس روڈ پر اچانک آتی ہے تو کیا اس وقت ڈرائیور کی سچویشن ہوتی ہے؟ جب گاڑی آتی ہے تو گاڑی ایک دم نہ سلیپ مارتی ہے، اور جس سے ٹائر خراب ہوتے ہیں، اور یہ اوپر ایک بنی سی بنی ہے، جب موٹر سائیکل نیچے اترتا ہے نا تو گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ روڈ برائے مہربانی بنوایا جائے۔ جی بنوایا جائے۔ جی یہ ہے لوگوں کا کہنا کہ جب بھی یہ دیکھیں اب یہ پیچھے سے گاڑیاں آ رہی ہیں، بڑی سپیڈ میں گاڑیاں جو ہیں وہ اس روڈ پر آتی ہیں، مگر جو ہی اس سلپ وے پہ جب ٹرن لینے لگتے ہیں تو اچانک ہی یہ جو سکریچ ہوا روڈ ہے یہ ان کی سپیڈ کو ایک تو کم کرتا ہے، اور دوسری جانب جو لوگ ہیں وہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اچانک ہی گاڑی جو ہے وہ ومبل کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے حادثات ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ بات کریں گے ٹو ویلرز کی تو موٹر سائیکل چلانے والے افراد کے لیے یہ ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ یہ قاتل روڈ جو ہے یہ بن چکا ہے۔ انتظامیہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس روڈ کو جہاں پر ملتان ایونیو بنایا جا رہا ہے وہیں پر یہ ایک اگر چھوٹا سا ٹوٹے کو کارپیٹ کر دیا جائے تو یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں ان کی جان جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ سلمان ضمیر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اس روڈ سے متعلق۔ ڈی جی خان میں شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا جانے والا پل درد سر۔ کارڈیالوجی اسپتال کے ساتھ قائم پل کے دونوں طرف سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گرد و غبار اور خراب پل سے مریضوں کو اسپتال جانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں آشان بخاری سے۔ جی بالکل، شہریوں کی سہولت کے لیے بنائی جانے والی جو پل ہے وہ شہریوں کا درد سر بن چکی ہے۔ کارڈیالوجی ہسپتال کے ساتھ بنائی جانے والی 2 رخا پل وہ جو ہے 1 سال عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکی، اور جس کے باعث شہریوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی جناب بتائیے گا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں؟ 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، یہ پل نہیں بنی، روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پل نہیں بنی بھائی جان، ہمیں آنے جانے میں دشواری ہے، یہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ رستہ بھی، اور پل کو 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، ابھی تک یہ نہیں بنی، اس کا کام رک گیا ہے۔ یہاں کارڈیالوجی ہسپتال ہے، دل کے مریض کیسے جائیں؟ یہاں ٹوٹ پھوٹ شکار ہے سڑک، اس وجہ سے آنے جانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ لہذا مہربانی کریں کہ اعلیٰ حکام سے ہماری اپیل ہے کہ اس کو بنانے میں ہمارے
मदद करे। गर्द गुबार जो उठता है उससे शहरियों को जो है सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि बारहा इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद भी इस पुल की जो है तामीर को मुकम्मल नहीं किया गया और साथ साथ जो रोड भी टूट फूट शिकार है उसको भी मुकम्मल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से शहरों की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो पा रही हैं। और शहरियों ने एक मरतबा फिर से आला हुकाम और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस पुल की और सड़क की पुल के दोनों तरफ जो सड़क है उसकी मरम्मती की जाए जल्द अज जल्द, और ताकि जो शहरियों की मुश्किलात हैं वो कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। पतंगबाजी पर बच्चों के वालिदैन जेल जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राना वहाब कहते हैं कहीं भी पतंगबाजी की इजाजत नहीं है, पतंगबाजी पर बच्चों के वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर बताइएगा। जी, काइट फ्लाइंग यानी कि पतंगबाजी के हवाले से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि बसंत की जो इजाज़त मिली है, फरवरी में हमें इजाज़त मिल गई है और इन दिनों में भी हम पतंगबाजी कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है या पतंगबाजी की इजाज़त नहीं मिली है? खासतौर पर बहावलपुर में कहीं अगर आपको पतंगबाजी कहीं नजर आ रही तो उसके हवाले से सवाल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कितने दिनों के लिए, कौन कौन से दिनों के लिए इजाज़त मिली है? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, सिर्फ लाहौर के लिए इजाज़त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी है वो भी लिमिटेड डेज के लिए, वो लाहौर के लिए है। रेस्ट ऑफ द पंजाब में किसी शहर में इंक्लूडिंग बहावलपुर गवर्नमेंट की तरफ से बसंत के लिए बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं है। और अगर आपको कहीं पे कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है आप हमें इतला करें, हमारी टीम्स भी इन फील्ड हैं, हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है कि बहावलपुर के अंदर कोई पतंगबाजी हो रही है। डायरेक्शंस बड़ी क्लियर तमाम SHOs को दी हुई हैं कि अगर किसी भी एरिया के अंदर पतंग उड़ती हुई या कोई चीज़ नज़र आएगी तो उसके खिलाफ फ़ौरन कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं या जो लोग हैं, अगर आपको कोई चीज़ नज़र आती है तो आप हमारे साथ शेयर करें, हम फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि पतंगबाजी की इजाज़त मिल गई है या फिर बसंत में हम ये फरवरी में हम बसंत मना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लाहौर में स्पेसिफिक डेज के लिए ये इजाज़त मिली है। बहावलपुर के लोग और ख़ासतौर पर उनके वालिदैन मोहतात हो जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इंदिया दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर। मुल्तान में शहरी सहूलतों के लिए पुलिस का एक और इक़दाम। IG पंजाब के अहकामात पर मुल्तान के तमाम DSPs के दफातर को साहबान मराकज़ में तब्दील किया जा रहा है। तमाम DSPs दफातर में शहरियों की दादरसी के साथ साथ 20 से ज़ायद सहूलियात दी जाएंगी। मजीद बता रहे हैं अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस की जानिब से शहरियों की सहूलियात के लिए एक और कदम जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसी वजह से मुल्तान में जो है वो साहिबान दफ्तर और साथ में खिदमत मरकज़ जो है वो बनाने का फैसला जो है वो किया गया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए DSP हेडक्वार्टर जाफर बुखार से मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं किसकी हदायत पर जो है वो ये काम हो रहा है और कितने साहिबान दफ्तर बनाए जाएंगे और खिदमत मरकज़ जो है वो कितने बनाए जाएंगे और शहरियों को क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी? जी, साहिबान के हवाले से तो मैं पहले एक अर्ज़ कर दूं कि IG साहब जो पंजाब हैं उनका इनिशिएटिव है और IG साहब का बेसिकली विजन ये है कि जितने भी SDPO ऑफिसेज हैं वो फुल्ली फैसिलिटेटेड, अच्छे, प्रेजेंटेबल, अच्छे नाम के साथ, जैसे कि साहिबान लफ्ज़ है, और जहाँ पे लोगों की दादरसी की जाए, उनको अच्छा माहौल इन्वायरमेंट दिया जाए, उनके लिए बाकायदा सिटिंग अच्छी जगह हो, वेटिंग एरिया साफ़ सुथरा हो, फुली फैसिलिटेटेड हो। तो इसमें इनिशिएट तो ये हो चुका है। जो हमारे SDPO कैंट हैं उनका ऑफिस हमने साहिबान में कन्वर्ट किया, बनाया है। और उसके बाद अब सेकंड फेज़ में जो है वो DHA थाने के मुल्हिका साहिबान ऑफिस तामीर किया जा रहा है और इसके बाद अप्रूवल ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। थाना साहिबान हरम गेट, SDPO हरम गेट का जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला ऑफिस कंस्ट्रक्ट करेंगे। मुल्तान में तमाम कवरेज है खिदमत मराकज़ की और इस वक्त ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट है वो डेढ़ चौक पे हमें खिदमत मरकज़ बना रहे हैं। मुल्तान में जो है वो डेढ़ चौक पर खिदमत मरकज़ सेंटर जो है वो भी बनाया जा रहा है, जहां पर शहरियों को उनके घर की दहलीज के करीब जो है वो सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। मजीद जो है इनका यही कहना है कि जैसे ही साहिबान दफ्तर बनाए जाएंगे तो शहरियों को भी मजीद से ज़्यादा सहूलियात दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान आपका। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा अली बिन तारिक की सरबराही में मीटिंग। SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान न्याजी, जिला भर के DSPs और SHOs के खुसूसी शिरकत। मीटिंग में जराइम की रोकथाम और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी बारे जायजा लिया गया।
PPO की रूपोश इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने की हिदायत। कहा मौसर तफ्तीश से मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाना जराइम कंट्रोल का असल फार्मूला है। शरपसंद अनासर की सुरकोबी के लिए सर्च, स्वेप और कॉम्बिंग ऑपरेशंस का सिलसिला बाकायदगी से जारी रखा जाए। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई ताखीर से नहीं होगी। बावलपुर के शहरी जदीद सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। लोधरा से डेरा बका तक 40 किलोमीटर का सफर सिर्फ 20 रुपए किराए में मिल रहा है। बसों में शदीद रश, मर्द, खवातीन, बच्चे सब ग्रीन बस के सफर को एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। जी बिल्कुल, भावलपुर के शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात मुयसर आ गई हैं और जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, ग्रीन बस सर्विस जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और ये एक बस का मंजर है जिसमें भरपूर तरीके से खवातीन और जो मुसाफिर हैं वो मौजूद है। एक बड़ी तादाद में लोग जो है इस बस में सफर कर रहे हैं और जो है मुसलसल ये गाड़ियां हैं भरी हुई हैं। क्यों जी, कहाँ से सफर कर रहे हैं और कैसी सहूलत है ये? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लोधरा से आ रहा हूँ भावलपुर को। ये बेहतरीन सफर है, ये आरामदा है, लेकिन जरा रश ज्यादा होता है। अगर थोड़ी सी गाड़ियां ज्यादा हो जाएं तो बेहतर हो जाएगा। मैं मलिक ज़हीर इकबाल चन्ना डिप्टी स्पीकर से गुजारिश करूंगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ से रवाना हुए हैं और किस तरीके से इस सफर की सहूलत को देख रहे हैं? मैं भी लोधरा से रवाना हुआ हूँ। आगे मुझे नहीं पता था, ये अंदाजा नहीं था इतना रश होगा। बड़ी मुश्किल से चढ़ गया हूँ बस पे, लेकिन बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। सामान होता है, सामान लेके आने में बड़ी मुश्किल हुई, दरवाजे में नहीं खड़े हो सकते। जी बिल्कुल, जो है वो शदीद रश है। जो एक सफरी सहूलत का वादा किया गया था वो मुयसर है। ये लोगों का रश है, लोगों का एतमाद है और वो चिंची जैसी सवारी से जो है वो जान छूटी है और लोग आरामदेह बसों में जो है वो महफूज तरीके से सफर करें। यकीनी तौर पे एक महरूम इलाका रहा है और अब लोग जो है इतनी अच्छी बस सर्विस को जो है वो बाकायदा तौर पर एंजॉय कर रहे हैं और उसमें सफर कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। सूबाई मोहतसम पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद। राजनपुर में एडवाइजर जाम मोहम्मद बका ने AC ऑफिस जामपुर में शिकायत सुनी और नई दरख्वास्तें वसूल की। 20 शिकायत का फौरी तौर पर अजाला करके दरख्वास्तों को निपटा दिया। इस पर बात करते हैं जावेद इकबाल से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई मोहतसब पंजाब के अहकामात की रोशनी में लोगों की शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद जो है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जामपुर में, जहां पर सूबाई मोहतसब पंजाब के एडवाइजर राजनपुर जनाब जाम मोहम्मद बका ने आज खुली कचहरी यहाँ पर लगाई। सैलिन की जो शिकायत थी उनको सुनी और नई दरखास्तें भी यहाँ पर जो है वसूल की। इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि इसका तरीकाकार क्या है और आज कितनी दरखास्तें आपने समाअत की हैं और क्या फैसले जारी हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। एक तो इसका तरीकेकार ये है कि आपने जो एप्लीकेशन है बाई हैंड भी हमें दे सकते हैं हमारे ऑफिस में आके, और दूसरा 1050 हेल्पलाइन भी है, और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी हमें दे सकते हैं मजीद भी आप जो एप्लीकेशन देने चाहें। इस वक्त हमारे पास जो 53 महकमा जात हैं सूबाई हुकूमत के, उसके खिलाफ आप कोई भी काम आपका रुका हुआ है तो वहाँ आपने एप्लीकेशन दी हुई है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उस वक्त हमें आप दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त में आपने मुकम्मल आपने लिखना है, सिर्फ ये नहीं लिखना कि पटवारी मेरा काम नहीं कर रहा, उसमें पूरी तफसील देनी है। इसके अलावा उसके साथ शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और एक बयान हर्ती होना चाहिए। तो आपकी तवज्जो यही है कि लोगों में आगाही पैदा हो कि उनको किसी भी महकमे से कोई शिकायत है तो हमसे रब्ता करें और उनका जल्दी अजाला किया जाए। जैसे कि आपने सुना जाम मोहम्मद बका साहब से, उनका कहना था कि किसी महकमे के सूबाई महकमे की जो 53 महकमे हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो मुकम्मल तफसील के साथ उनको एप्लीकेशन दें, उनकी दरख्वास्त पर जो है फौरी तौर पर अजाला भी किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि आज 20 के करीब आज की जो समातें हुई उनमें से मुतअद्दिद के जो है ना वो फैसले कर रहे हैं, जबकि नई दरख्वास्तें भी वसूल की जा रही हैं। जी शुक्रिया जावेद इकबाल आपका। पार्कों को खूबसूरत बनाने का मिशन। MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी मुल्तान करीम बख्श का ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों का दौरा। शहर के दाखिली रास्तों पर शजरकारी का जायजा लिया गया कि ब्लॉक पार्क में मिट्टी की भराई का अमल भी जारी है। आपको बता रहे हैं पार्कों को खूबसूरत बनाने का मिशन। MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी मुल्तान करीम बख्श का ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों का दौरा। शहर के दाखिली रास्तों पर शजरकारी का जायजा लिया कि ब्लॉक पार्क में मिट्टी की भराई का अमल भी जारी है।
कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का म्यूनिसिपल लाइब्रेरी का दौरा। कैफे मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने और लाइब्रेरी के बरामदे में वॉक इन कैफे बनाने की हिदायत की गई। कहा कैफे एरिया को जदीद स्टैटिक्स पर साथ खूबसूरत बनाया जाए। इसके अलावा सिट इन कैफे में शेड, लाइट, सब्जा और बैठने के मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। म्यूनिसिपल लाइब्रेरी के साथ कबूतरों और परिंदों के लिए अलहदा और दीदा जेब फीडिंग एरिया भी बनाने का फैसला किया गया। कहा घंटाघर चौक पर जेर तामीर डिवाइडर भी तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। घंटाघर डिवाइडर की तामीर में मुल्तान की सकाफत को मद्देनजर रखा गया है। आपको बता रहे हैं कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का म्यूनिसिपल लाइब्रेरी का दौरा। कैफे मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने और लाइब्रेरी के बरामदे में वॉक इन कैफे बनाए जाने की हिदायत की गई हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारे साथ रहिएगा, रोही देखते रहिए।